First of all, I like to thank Dr. Shweta for inviting me here, and there are few persons in life whom you cannot refuse whenever they tell you something to do. And Dr. Shweta is one of them, definitely. She is so dear to me because she was our first batch MBA student, and then she did job also at our place, and then I must congratulate her for becoming a professor here in such a short time. I think, and Dr. Shalini further for approaching me on behalf of Shweta. And Dr. Shalini, let me tell you, also started her job in our MBA college when, after doing her psychology post-graduation, she joined, and she was a wonderful teacher. We never wanted her to go from our place, but you know, from private people continue to keep on moving to government sector, and I am very happy that she is so successful in her profession, career, and of course, she is very dear to the students. They all are like a family to me. We have not many people working in Kanpur who work with us, work dedicatedly with us, work committedly with us, and now I am very happy to note that they are the building blocks of this Kanpur University. Once Dr. Shweta and Dr. Shalini talked to me regarding the topic, I gave them various options. But I am not sticking to the option which I gave them. I gave them other options. But then, once I thought that I am to speak to the people in the hospitality management, people into the bachelors of business administration, I thought I must talk to you on a topic which is very dear to me. And that is why I have labeled him how to make your life meaningful and successful. Nowadays, we are only talking about success. People want to be successful. But how to make your life meaningful also is equally important, as it is important to be successful in your life. You never know when your life changes. And who teaches you? You never know. Who will be the person who will be changing your life? You never know. I am an eye surgeon, and naturally I also wanted to be successful in my life, but that success only pertained to my particular field of interest, and that was ophthalmology, of course, the eye, which we call in common language. And I was really successful after my hard work there in the campus. When I joined there, the OPD was around 30 to 40 patients. Now it is more than 400 patients. There were about 10 to 20 surgeries in a week. Now there are almost 10 to 20 surgeries plus 20-30 surgeries a day itself. But then one day, a patient came to me. I see my patients like in a standing position. That is also a time management way of managing the things. Not many people, they keep coming. Most of the people, they come to me with either one spectacle or two spectacles. Because I am an eye surgeon, they will be coming to me showing me one spectacle or two spectacles. One, of course, for distance vision, one, of course, for near vision. One day a person came to me and he kept 3 spectacles on my dais. The moment he kept 3 spectacles on my dais, I was perturbed. I said, just pick them up, because there was hardly any space on my dais. But then I was inquisitive to know why he is carrying 3 spectacles. Normally people carry 2 spectacles. I asked him, what are they for? He said, sir, this is for distance vision. I said, fine, I can understand. The other one, he said, is for near vision, for looking at a near object. Then I asked him, what about the third one? Which I wanted to know, what about the third one? He said,
The third one is to search both of them. ये तीसरा चश्मा उन दोनों को ढूंढने के लिए। मैंने कहा देख, जब तूने 3-3 चश्मे रखे तो मेरी एक बात और मान। उसने कहा क्या? मैंने कहा तू आज से 3 की बजाय 4 रखा कर। उसने कहा right now though you were perturbed about 3 spectacles, now you say you advise me to keep 4 spectacles. I said you have kept 3 spectacles to look at this world, to look at this physical world. But have you ever tried to peep in yourself, peep inside you? कभी तुमने अपने अंदर देखने की भी कोशिश की? उसको थोड़ी सी शर्म। तो मैंने कहा ये चौथा चश्मा अपने अंदर देखने की। And this is what is difference between a successful and a meaningful life. The successful people, they use those 3 spectacles. They only look at the physical world and they do not peep inside. And a meaningful life means that we are peeping inside. We are making us a better human being as we grow in success. So that will be the crux of my topic, and that of course my presentation will revolve around you, revolve around the topic that how to peep inside yourself. And that is why I have started with मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। दुनिया भटकती है, but ultimately they reach whatever they want to achieve if you have a dedication, if you have a commitment. So मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। गुमराह तो वो होते हैं जो घर से निकलेंगे, यानी जो घर से। So you have to work. Once we are in this world, you have to work, and you have to work dedicatedly, you have to work committedly, you have to work with a lot of desire and determination. What is success after all? Success is a progressive realization of worthy goals. Now there are 3 terms to it. 1 success, 2 progressive, 3 realization of worthy goals. You see, progressive means journey, it is an ongoing process, and realization means experience. And the worthiness means value system, which the respected Vice Chancellor was just talking about. So value system is very important, and that is where we are lacking behind. See, earlier on, दादा दादी की गोदी, नाना नाना की गोदी, ये कोई बेकार गोदियाँ नहीं थी, ये संस्कार पाठशालाएं थी। You see, we learn the maximum up to the 5 years of age. Our 70% of the IQ, Dr. Shalini will correct me if I am wrong, 70% of the IQ develops by the age of 5 years. And today we are not working on those 5 years. Earlier on, the strength of India was in its families. All the children of my age were brought up by whom? Grandparents. Even the parents had a lot of time to spend with us. Now neither the parents have time to spend with the children, nor the grandparents are there because the families are broken. Our family size today is 4.5, which is likely to be 2.5 in next 20 years. So the families are breaking, and the strength of India lies in its families, lies in its villages, lies in its community. So we are losing our strength, and that is why, that is where we have to work. That is the area where we have to work and work a lot, so that the generation which is coming next, we proudly say that India is a young country. We are very proudly saying it and repeatedly saying it, that India is a young country. But are those young people with values? You answer me. क्या जो जनरेशन आप आजकल देख रहे हो,
आपको लगता है कि ये ठीक जनरेशन है? So that means we have increased in quantity, but we have not increased in quality. So it is very important that whenever we are on the path to success or road to success, we must add on value system into it. Success is a manifestation of T diet. You look at this diet. It is perspiration. It is desperation. While you are sweating out, you are likely to be frustrated. But nothing should go away from you. Desperation means nothing to us. And then aspirations. We have to aspire for bigger things. And then inspiration. There has to be somebody to inspire you, somebody to motivate you. All these four things are added on with luck. And that is why I call it a P diet. It involves perspiration, it involves desperation, it involves aspiration, it involves inspiration, added with this luck. Now what I would like to tell you is that in life, as I said, it is progressive realization. You have to do something more than the others. So do more than touch, feel. Do more than look, observe. You see, if we are sitting, somebody must be looking at this board, somebody must be observing them. So there is a difference between looking and observing. Then, do more than read. Not many people read in this world. There are very few who absorb. Absorbing is very important. 100 पेज पढ़े, एक वर्ड भी absorb नहीं किया, so it is useless. So you don't have to read, you have to absorb. Do more than absorb. Apply. Because whatever we learn in our life, it is very important that we apply our knowledge for the benefit of the mankind. You see, science did so many good things, but at the same time, science did a lot of bad things also. Today, the world is on the edge of a nuclear mountain. Any time it can burst and the whole world can go off. So this is what the science has given us. Even the person who invented dynamite, and by whose name we have the Nobel Prizes these days distributed throughout the world, Alfred Nobel. He was the one person who was inventor of dynamite. After making dynamite, he was so depressed with his discovery that one day he donated whole of his property to this trust, and that is how the Nobel Prizes started. That means on one hand he achieved success as a scientist, but the day he realized that my life is not meaningful, I will be remembered by the people as a person who killed thousands and thousands. And therefore, to make his life meaningful, he donated whole of his property, and that is how the Nobel Prizes started. And today, we give Nobel Peace Prize, we give so many other Nobel Prizes, but we owe to whom? A successful person who wanted to make his life meaningful. Do more than hear. Listen. Anyone who can tell me what is the difference between hearing and listening? They are synonymously used terms, but they are not synonymous. Hearing is with ears only. That means a sound is going. I am listening, I am hearing a sound, but I am not getting what is it. And listening is when with this physical sound I combine my soul. So that is the difference between hearing and listening.
Like out of you, few of you might be listening to my voice. But if they are not deciphering anything out of it, or right now they are engaged in somewhere else, must be in their mobile, must be in their something that I am getting late for my bus or I must leave the campus. So all those thoughts, if they are occupying you, that means you are just hearing me, and if you are listening me, that is a truthful thing. I will give you examples later in my presentation, what is the difference between hearing and listening. Do more than help. Serve me. Serving is very important. And do more than dream. Everybody dreams. And they say, per day, we have almost 10,000 dreams. But there are very few who hold on to those dreams, wake up in the morning and work on those dreams. So therefore, we must do something more than dreaming, that is doing. Do more than work. Everyone works, but there are very few who excel. And excelling in your industry is very important. You see, प्लेट उठा के तो हर कोई आ जाता है, बट प्लेट उठा के कौन दूसरे को खिला पाता है? So do more than work, excel. Do more than exist. Everybody exists in this universe. Even the animals, they exist. But why are we called human beings? We could have been called humans. But since we are called human beings, that means it is an ongoing and ever-going process. Therefore, we are not here to exist. We are here to सुन रहे हो ना मेरी बात? फिर बोलते क्यों नहीं? We are here to live. We are not here for a living. And you see the present education system. What does it give us? Does it train us for life? Does it train us for life? It only gives us a degree. और अब डिग्री भी ऐसी नहीं रही कि जो मेहनत करके आदमी को मिले, पैसों से भी मिल जाए। और उसी डिग्री से जो तुम लोगों ने मेहनत करके ली और जो किसी ने खरीद कर ली, नौकरी दोनों को एक जैसी मिलती है। मिलती है कि नहीं मिलती है? So that means the degree which we are giving you or the degree which is being awarded to you is only good for living. It is not good for life. So if you want to make your life, do more than exist. Live. Make a life out of the time which God has given you on this universe. The second thing is that, do you think lots of money means success? There are people with tons loads of money and who have committed suicide. There are people with tons loads of money who have been admitted into these psychiatric asylums. They have been depressed, they have been schizophrenic, but not have they been with tons loads of money. So that means money cannot be a means to success. Earning money does not mean success. Money will buy you a bed, but not sleep. जिनके जितने कोजी बेड्स हैं, उनको नींद नहीं आती। एक बार अकबर और बीरबल कहीं पर जा रहे थे। अकबर और बीरबल के किस्से तुमने सुने? तो एक रास्ते में आदमी जो लेबरर था, पत्थर की ढेरी होती है ना, लगी होती है, जो सड़क बनती है तो पत्थर साइड पर रखे होते हैं, ढेरियां बनी। उस पत्थर की ढेरी पर बड़े आराम से सो रहा। अकबर को लगा कि इतनी गर्मी में पत्थरों के ऊपर कौन सो सकता है, इतने सुकून से सो रहा है, क्यों ना इसको मैं कुछ सुख सुविधाएं दे दूं, बेचारा इतनी मेहनत करता है मेरे देश में। उसने बीरबल से कहा, इसे ले चलो, एक दिन अपने महल में सुलाएंगे, इसको सुख सुविधाएं। उसको ले आए महल में।
बीरबल ने बहुत अच्छा उसका बिस्तर का इंतज़ाम किया, बहुत अच्छे पंखे का इंतज़ाम किया, खाने का इंतज़ाम किया, बट बीरबल तो बीरबल था। बीरबल ने उस गद्दे में एक छोटा सा कांटा रख दिया, और जब सुबह अकबर और बीरबल दोनों उससे मिलने आए तो अकबर ने सोचा कि आज तो ये आदमी बड़े आराम से सोया होगा। जो पत्थरों पे सोया था आज मखमली गद्दे पे सोकर बड़े अच्छे से सोया होगा। अकबर ने पूछा कैसी नींद आई? कहता जहां ना रात तो मैं सो ही नहीं पाया। तो अकबर ने कहा ऐसा क्यों? उसने कहा महाराज ये कोई कांटा बीच में चुभता रहा। अकबर ने कहा कि जब तू वहां पत्थरों पर सोया था तब तेरे को कांटा नहीं चुभता था। जब वो पत्थरों पर सोया तब उसने अपना पसीना बहाया, और जब वो मखमल के गद्दे पे सोया तो बड़ा दिन पूरे एयर कंडीशन में रहकर सोया तो उसको नींद नहीं। सो मनी कैन बाय योर बेड बट इट कैन नॉट बाय योर स्लीप। There are 70% people in America, believe me, there are 70% people in America who are taking some kind of a pill to relax themselves. Anxiolytic drugs are the most common variety of drugs being sold in America. So, choice is yours. If you want a way like America, life like America, and you want to subject yourself to various kinds of pills related to anxiety, stress and depression, it is up to you. Money will buy you food, but it cannot buy you appetite. भूख नहीं पैदा कर सकता हमारे अंदर। खाना जितना मर्जी और जितने लोगों के जितने बड़े डाइनिंग टेबल और जितनी डिशेस लगी होती हैं, खाते गए एक सूखी रोटी। आदमी जैसे जैसे पैसे आते जाते हैं ना, वैसे वैसे खाना घटता चला जाता है। जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे तो बड़ा दिल करता था कभी 5 स्टार में जाके खाना खाए, और जिस दिन खा के आते थे 6 महीने तक उस हाथ को संभाले रहते थे कि भाई इस हाथ से खाना खाया 5 स्टार में। And slowly and steadily, when that time I couldn't afford eating in a 5 star, but since now I can afford eating in a 5 star, अब अच्छा नहीं लगता, और अच्छा लगता तो खा नहीं सकता, because I have to take care of my health. So money will buy you food, but it will not buy you appetite. Money will buy you a clock. अच्छी से अच्छी क्लॉक ले सकते हो, रेडो, ओमेगा, रोलेक्स, कुछ भी ले सकते हो, but it cannot buy you time. Money will buy you books. बहुत लोगों के घर में मैंने देखा बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज बनाई हुई हैं पर कोई किताब खुली नहीं। किताबें हैं बट पढ़ते नहीं। Money will buy you medicines but not health. मिल सकती है हेल्थ। मरने वाला आदमी आकर ये कहता है डॉक्टर साहब के करोड़ों लग जाएं, कुछ दिन भी याद हो तब करोड़ काम नहीं आता। मनी विल बाय यू a ring but not marriage. हीरे की अंगूठी पहनाने से कभी जीवन साथी पक्का नहीं बनता। घोड़े की नाल की अंगूठियां भी जिन्होंने पहनाई है उनकी भी गृहस्थी बहुत अच्छी चलती है। सॉलिटेयर की अंगूठी पहनाने से कोई शादी की गारंटी नहीं होती, या कोई पंडित के फेरे पढ़ लेने से शादी की गारंटी नहीं होती। ये आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करती है, आपके बिहेवियर पे डिपेंड करती है, आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करती है। सो मनी विल बाय यू a ring but it cannot buy you marriage. अगर ऐसा होता तो मैंने लिखा सर्पा पिबंती पवन, सांप सिर्फ हवा पर जिंदा रहता, और कितना फनियर होता। हाथी केवल सूखे पत्ते खाता है और सबसे बलशाली जंगल में होता है, द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन। और जो हमारे ऋषि मुनि हैं वो केवल पत्ते, कंद, फूल, फल खाकर ही
हमारे से ज़्यादा 400-400 साल जिए, कोई 800-800 साल जिए, पर वो जिए। और आदमी केवल और केवल सेटिस्फेक्शन से, इट डिपेंड्स कि किस दिन आपको लाइफ में सेटिस्फेक्शन मिल जाए, और जिस दिन सेटिस्फेक्शन मिल जाए उस दिन हमारा जीवन बदलने लगता है, उस दिन हमारी लाइफ सफलता की बजाय सार्थक होने लगता है। Now, what are the personality ingredients to success? Like every food has some ingredients. होते हैं कि नहीं होते? इनको सिर्फ मैनेजमेंट पढ़ाते हैं, कभी थोड़ी बहुत ही कुकिंग शुकिंग भी सिखाते हैं, कुछ बताते हैं, सिखाते हैं। So, thank you, thank you. मन तो बहुत है, 2 बार। Sure. What are the ingredients to a successful and a meaningful life? The first and foremost thing is our attitude. You see, everything revolves around our positive mental attitude. Believe me, everything is in a thought process. You tell me when India became independent. Which date? This is what everyone says. But I say, India became independent the day the luggage of Gandhiji was thrown out of the train and a person was determined that yes, I will free my country from the clutches of the British. So independence उस दिन हुई या independence 15 अगस्त 1947 को हुई? जिस दिन गांधी ने ये सोचा कि मैं अपने देश को आजाद कराऊंगा, और जिस दिन एक आदमी ने सोच लिया और संकल्प ले लिया, उस दिन देश आजाद हुआ। ये देश 15 अगस्त या 18 को होता, चाहे 49 में होता, देश को तो आजाद होना ही था। Because one person had voted that yes, I'll free my motherland. So everything is in the thought process. It is not in the physical things. And believe me, whatever we think, we do it. The thoughts, they lead on to our actions. And whatever our actions, repeated actions, will make our habit. And whatever our habits, they will make our character. And whatever is our character, will be our destiny. होगा कि नहीं होगा ऐसा? Thoughts, actions, habits, character, and so is our destiny. So, we must think positive. We must think good. कभी भी में नेगेटिविटी को आने ही मत दो। जितना पॉजिटिव सोचोगे, जितना पॉजिटिव थॉट प्रोसेस रखोगे, और पॉजिटिव थॉट प्रोसेस आ नहीं सकता हमारे बच्चों में, क्योंकि हमारी ब्रीडिंग ऐसी है। 4 साल तक भारत का बच्चा 1.5 लाख बार ना सुनता है, अपनी माँ से भी, अपने टीचर से भी। कैसे उसमें पॉजिटिविटी है? एंड इट टेक्स 4 पॉजिटिव थॉट्स to correct one negative thought. So the parents, good parenting is very important. We must teach our children to have positive mental attitude. अब कहाँ है वो माएँ कि अगर किसी का खिलौना छीन ले तो माँ भी पीछे पीछे लड़ने जाती है। पहले माँ कहती थी नहीं भाई, नहीं तेरा भाई है, दे दे इसे। अब कहती है क्या? किसी के घर में गलती से बच्चों की गेंद चली जाए तो लड़ने आ जाते हैं, बच्चे को मारने आ जाते हैं। अरे बच्चे खेलेंगे, कुछ शीशा टूट भी गया तो क्या हो जाएगा? बट नो, सिंस वी हैव नेगेटिविटी इन आवर माइंड, वी ओनली लुक एट द नेगेटिव एस्पेक्ट। जब बच्चों के पास हमने ग्राउंड्स बंद कर दिए खेलने के, तो गली में खेलेंगे। बच्चों को गली से खेलना कब बंद करा सकते हैं? जब हमने ग्राउंड्स दें। सचिन तेंदुलकर को किसी ने पूछा भी तो इतना अच्छा स्ट्रेट ड्राइव कैसे लगाता है? उसने कहा मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं थी, मैं गली में खेलता था, साइड पे मार नहीं सकता था, इसलिए सीधा ही मारना पड़ता था गेंद। सो दैट इज हाउ ही डेवलप्ड स्ट्रेट ड्राइव एज ए स्ट्रेंथ, बिकॉज उसको अपने गेम पे फोकस था, उसकी सोच पॉजिटिव थी। ही वाज नेवर वरीड अबाउट द साइड्स, ही वाज वरीड अबाउट द सेंटर पार्ट। So our aim should be
to focus on the positive things rather than the negative things. Like you are in this college, do not think what is not there in the college. Think what is there in the college and how can you make best use of those resources. What is important? Looking at the negative things के AC नहीं चल रहा, या कुर्सी टूटी है, या टीचर अच्छे नहीं है. Why should we? Our aim is to get the best out of the resources which we have at our disposal. So always think positive. I'll give you so many examples. Have you heard about the name Socrates? सुकरात का नाम सुना आप लोगों में से किसी ने? Socrates was a great philosopher, बहुत बड़ा philosopher हुआ, and we call him the first teacher of the modern times, because he was the one, after him Aristotle and Plato, they started the classroom kind of a teaching. Prior to that there was no classroom kind of teaching in the Europe. So Socrates, since he was a philosopher, he was all the time surrounded by the students. सुबह से स्टूडेंट्स आने शुरू होते हैं, उन्हें कुछ पढ़ाने लगता. जब आदमी इतना बिजी होने लगता है तो जो आदमी शादीशुदा हो उसकी लाइफ मुश्किल हो जाती है, बीवी चिड़चिड़ी हो जाती है. होती है कि नहीं होती है? हो जाती है ना. तो उसकी बीवी जो ज़ेन्थिपा थी उसका नाम, उसको भी सोक्रेटिस से चिढ़ होने लगी कि क्या सुबह से शाम तक पढ़ाता ही रहता लोगों. एक दिन सुबह चाय लेकर आई, बट वो इतना इन्वॉल्व था अपने लेक्चर में कि उसको चाय की चिंता नहीं थी. अब बीवी ने क्या किया? गरम चाय की केतली उसके मुंह पे मुंह जल गया. जो उसके स्टूडेंट्स थे, they were in anger. उन्होंने कहा कि if you say so, we will punish her. तो सोक्रेटिस ने अपने मुंह की तरफ हाथ किया और उन्होंने बच्चों को कहा कि देखो इसकी कितनी कृपा है कि इसने मेरा एक साइड का ही फेस तो जलाया, एक साइड का तो बचा. सो दैट इज व्हाट पॉजिटिव थिंकिंग इज, कि एक साइड का बचना इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसने कहा ये चाहती तो सामने से भी मार सकती थी, मेरे पूरे मुंह को जला सकती थी, परंतु इसने मेरा, आई एम थैंकफुल टू हर कि इसने मेरा आधा ही मुंह जलाया, आधा फिर भी अच्छा. So that is the way we must look at the things. And why thought is important? Let me tell you the story of a saint who was traveling in a boat. And there were few young students also who were traveling with him. आजकल अच्छा भजन कीर्तन किसी को अच्छा नहीं लगता. संत महात्मा का शाम का समय हुआ, उन्होंने अपना भजन कीर्तन करना शुरू किया. बच्चों को मौका लगा, उन्होंने देखा गिरजा डांट वाला संत है, उसके सिर पे जूतियां मार के तबला बजा दी. संत तो अपने पाठ कर रहे हैं, उन्होंने तबला बना लिया. उसका तबला बना के बजने लगा, संत अपना भजन करते. इतने में जब किसी अच्छी सोल के साथ कोई ज्यादती हो तो परमात्मा भी दुखी हो. ऊपर से आकाशवाणी हुई कि तू कहे तो मैं किश्ती को पलट दूं, तू कहे तो मैं किश्ती को पलट दूं. तो उस संत ने ऊपर परमात्मा की तरफ हाथ उठाए, परमात्मा की तरफ मुंह किया और कहा, हे भगवान तू कैसी शैतानों जैसी बात है. नाव को पलटने से क्या होगा? पलटना है तो इनकी बुद्धि को पलटना. What is important is transformation of our thoughts, change of our thoughts, and the day we change our thoughts, and that is why how I started my presentation, that from outside we have to go inside, which is most important. And that is the only tuning you have to do with your body to make your life meaningful. कि बाहर देखने की बजाय अपने अंदर झांकना शुरू करें. बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिला. जो मन झांका आपना मुझसे बुरा. और जब मैंने अपने अंदर देखा तो मेरे से बुरा कोई व्यक्ति नहीं. तो इसलिए what is the most important thing in our life is to look inside. The second important thing is boldness. You need to be courageous. You see,
if you ask me one single point about success, I'll say it is courage of conviction. Courage of conviction means whether you have done right or you have wrong, you must have the courage to convict that yes, this is what I have done. What happens nowadays is कि गलत हो जाए तो दूसरे का, ठीक हो जाए तो मेरा. And believe me, लाइफ में जितने भी लोग जिनको हम याद करते हैं, जिनके हम नाम लेते हैं, वो लोग अपनी लाइफ में करेजियस हुए, बोल्ड रहे, साहसी बने, तभी हम उनको याद करते हैं. रानी की झांसी को क्यों याद करते हैं? बुंदेलहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो क्यों करते हैं? क्योंकि वो खूब लड़ी और अकेले लड़ी और अंग्रेजों से लड़ी जिनका राज्य का सूरज कभी छिपता नहीं था. अकेली लड़ी. गुरु गोविंद सिंह 4 मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार, 4 बच्चे बलिदान हो गए, फिर भी वो व्यक्ति कहता है 4 मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार. और सारे के सारे तो मेरे बच्चे हैं. इतनी तो सोच बदलनी है. Like your vice chancellor was addressing you as a daughter. इतनी तो अपनी दृष्टि बदलनी है कि तुम मेरे स्टूडेंट्स नहीं हो, तुम मेरे बच्चे हो. जो व्यवहार मैं अपने बच्चे के साथ करूँ वो तुम्हारे साथ करूँ. इतना ही तो सोचना है. So I was very happy once she addressed you as daughters. It is very important that a teacher thinks of his students not only as students but as sons and daughters. And that was what was happening in the Gurukuls. गुरुकुल में गुरु अपने बच्चे को भी वैसे ही रखते थे, राजकुमार को भी वैसे ही रखते थे. कोई पेड फ्री सीट का चक्कर नहीं था मैनेजमेंट सीट का. सब एक ही कोटे में शामिल थे. कृष्ण ने भी जाके संदीपन के आश्रम में लकड़ियां काटनी पड़ेगी क्योंकि गुरुकुल की व्यवस्था. ऐसा नहीं कि यू आर एग्जम्प्टेड. इसीलिए भारत महान था क्योंकि भारत में ऐसे ऐसे लोग. मदन लाल धिंगड़ा 21 साल का फांसी पे लगा. और जब फांसी होनी थी कल, एक दिन पहले वीर सावरकर मिलने गए. वीर सावरकर का नाम सुना है कि नहीं सुना? मदन लाल धिंगड़ा का तो सुना है. सुना है कि नहीं सुना? He was a freedom fighter जिसने इंग्लैंड में एक फौजी अंग्रेज को मारा था और उसको वहीं पकड़ लिया गया था और फिर फांसी पर लटका दिया गया था. और आयरनी ये हुई कि 50 साल के बाद उसकी हड्डियां इस भारत में आई. और जब वीर सावरकर जो एक और क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, मदन लाल धिंगड़ा से मिलने गए तो मदन लाल धिंगड़ा से पूछा तुझे कुछ चाहिए क्या? तो मदन लाल धिंगड़ा ने मालूम है क्या कहा? मदन लाल धिंगड़ा ने कहा कि एक आईना भिजवा दो, एक मिरर. सावरकर वाज अमेज्ड कि कल फांसी होनी है, आज इसको शीशा चाहिए, किस लिए? तो मदन लाल धिंगड़ा ने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ कि अपनी माँ भारती पर बलिदान होते हुए, फांसी चढ़ते हुए क्या मेरे चेहरे के हाव भाव बदलते हैं. मैं खुश होकर इस भारत माता पर अपने आप को बलिदान देना चाहता हूँ. That was the courage and that was at the age of 21. करतार सिंह सराभा ने 19 साल की उम्र में फांसी ली. खुदीराम बोस ने 18 साल की उम्र में फांसी ली. वीर हकीकत ने 8 साल की उम्र में. वीर हकीकत का नाम सुना कि नहीं सुना? यार याद करने जाते हो तुम रोज सुबह, मैडम मेरे को बता रहे थे. वीर हकीकत जिनके नाम पे बसंत पंचमी, आज का सर छोटू राम का जन्मदिन साथ में हमने जोड़ दिया. बट वीर हकीकत एक ऐसा बच्चा था जो पाकिस्तान जो अब बन गया हिंदुस्तान का हिस्सा था, वहाँ रहता था. तो किसी ने जैसे हिंदू गुरुओं को गाली दी, हिंदू देवी देवताओं को गाली दी, तो उसने अपोज किया तो उसको काजी के पास पकड़ के ले गए. काजी ने कहा कि या तो तू मुसलमान बन जा, नहीं तो तेरा सर कलम कर देंगे. हकीकत ने कहा कि मेरा सर कलम कर दो, मैं तो अपना हिंदू ही रहूँगा. वीर हकीकत को जल्लाद को बुला लिया, सिर उसका रख दिया लकड़ी के ऊपर. काटने के लिए जल्लाद तैयार हो गया और जब जल्लाद तलवार उठाई तो उसने देखा कि 8 साल का बच्चा है. उसके भी हाथ काम थे. आखिरकार ह्यूमनिज्म तो हर एक में होता है ना. चाहे अपना प्रोफेशन ही कर रहा हो, जल्लाद हो, कसाई हो,
उसमें भी ह्यूमनिज्म था। उसके हाथ कांपने लगे तो वीर हकीकत ने कहा कि जल्लाद, जब अपना कर्म करते हुए मेरी गर्दन नहीं कांप रही, तो अपना कर्म करते हुए तेरे हाथ क्यों कांप रहे? You see, that was the kind of courage in India, and we must remember all those people. अगर आप लोगों ने ये नहीं पढ़े तो प्लीज जाकर पढ़ना, it will change your life, because it is very important to know about the people who brought freedom to this country. यदि हम अपने फ्रीडम फाइटर्स को याद करेंगे, अपने ऋषि मुनियों को याद करेंगे, and that is how madam started with what is common in Baba Masnath and Bhagat Phool Singh. The important is that both the universities are blessed universities because they are founded by the noble souls. And the noble souls, if we don't remember, भारत से ब्रेन ड्रेन क्यों हो रहा है? क्यों लोग भारत को बेकार समझते हैं? क्योंकि वो भारत को अच्छे से समझते ही नहीं है। मेरी कुंडली में लिखा था कि 7 समुंदर पार जाएगा। मेरे फादर को किसी ज्योतिषी ने कहा कि ये आपका बेटा पढ़ते ही बाहर नौकरी करते जाएगा, ये हिंदुस्तान में रह ही नहीं सकता। मेरे फादर ने मुझे बताया तो मैंने आई टुक इट एज ए वो, मैंने कहा कुछ भी हो जाए पापा, मैं अपने भारत में रहूंगा और अपने भारत के गरीबों की सेवा करूंगा, एंड दैट इज व्हाट आई हैव बीन डूइंग फॉर द लास्ट 24-5 years. My OPD slip is not about 1000 rupees, it is about 10 rupees. I am seeing every patient free of cost. I am operating every patient free of cost because I want to do something for my country. And doing something for the country is very important. And just कि मैं उस ज्योतिषी को झूठा ठहराना चाहता हूँ, मैं उस ज्योतिषी को ये बताना चाहता हूँ कि जो तुमने कहा वो सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि हर चीज हमारे हाथों में है, हर चीज हमारी सोच में है, and that is very important. And the third thing which I want to discuss with you is compassion. आप कुछ भी बन जाओ, मैं एक 5 स्टार होटल में शादी में गया, तो the person who was serving my table came to me and said, "Sir, are you Dr. Markandeya?" वो भी उसकी हिम्मत मेरे से नहीं हुई, मेरी वाइफ से पूछा उसने कि ये डॉक्टर मार्कंडेय है? तो मेरी वाइफ ने कहा हाँ। उसने कहा मैडम मैं आपके ना स्कूल में पढ़ा था, मैं आपके स्कूल में पढ़ा था। जब उसने कहा कि मैं आपके स्कूल में पढ़ा था तो वो हमारी प्लेट सुखा था, मैंने उसे अपनी प्लेट वापस रखी और मैं अपनी प्लेट खुद रख के आया उस बच्चे के साथ अपना हाथ डाल के। मैंने कहा कि यार आई एम रियली सरप्राइज्ड कि मेरे स्कूल का बच्चा यहाँ आके एक वेटर का काम करे, बट उसने देन ही टोल्ड मी कि सर नो इट इज़ नॉट वेटर्स जॉब, ये हम यहाँ पर एज ट्रेनी आते हैं, आफ्टर डूइंग आवर होटल मैनेजमेंट वी कम एज ट्रेनीज। बट यू सी मेरे अंदर की संवेदना जागी जब मैंने उस बच्चे को देखा कि जो हमारे स्कूल का बच्चा है और इस तरह का काम कर रहा है। मैंने अपनी प्लेट खुद उठाई और उसके साथ गया और रख के आया। आई नेवर अलाउड हिम। सो हमारे अंदर की संवेदना, हमारे अंदर का कंपैशन, हमारे अंदर की सहानुभूति, हमारे अंदर की समानुभूति जब तक किसी के लिए नहीं हो, सपोज मैं कितना ही अच्छा डॉक्टर हूँ और किसी पेशेंट के लिए मेरे लिए फीलिंग्स ही नहीं, जब तक मैं ये नहीं समझता कि ये जो पेशेंट मेरे पास आ रहा है मेरा ही माँ, मेरी बाप, मेरा ही भाई, मेरी ही बहन, तब तक मेरी दृष्टि बदल नहीं सकती। सो दैट काइंड ऑफ फीलिंग वी मस्ट हैव। और हिंदुस्तान में अनेक ऐसे उदाहरण हुए हैं, जैसे महाराज एकनाथ हुए। एकनाथ जी के बारे में जानते हो तुम लोग? एकनाथ जी का नाम सुना कि नहीं सुना? ऐसे संत हुए कि कई दिन के भूखे थे, रोटी मिली, कुत्ता रोटी लेकर भाग गया, कुत्ते के पीछे पीछे भागे, इसलिए भागे घी की कटोरी लेकर भागे कि तू कम से कम यार सूखी मत खा। You see, that kind of compassion, that kind of empathy, that kind of sympathy we must have, whatever professional we may be. तुम भी किसी को खाना खिलाओ तो ऐसे खिलाओ जैसे तुम अपने घर में खिलाओ।
You see, I went to Russia about 18 years ago, and one thing which I like best about McDonald's, मैं कभी McDonald's में पहले जाता नहीं था, but there we had no other option but to eat at McDonald's, because otherwise तो beef में मिलता था सारा. So I went to McDonald's, and there was a long queue. I asked, what is it? उन्होंने कहा कि 9 से 11 बजे जो आदमी हमें आकर कहता है कि मैं गरीब हूँ, उसको फ्री खिलाए, कितना ही खिलाए. You see, even the companies at the top, they have compassion in their mind. And that is how earlier on in a communist country, no multinationals were allowed. McDonald's was the first company to enter a communist country and establish all other MNCs. Once the Russian government saw the compassion of McDonald's, that is how they allowed the other companies also to come. So it is very important that we have compassion in our life. You believe me, we are getting nowadays computerized. We are getting computerized or not? Yes. Have you heard about Roger Penrose? Have you heard about a book called Emperor's New Mind? Emperor's New Mind? नहीं? चलो, I tell you a small prologue of that Emperor's New Mind. Emperor's New Mind की किताब में रॉबर्ट पेनरोज ने एक प्रोलोग लिखा, प्रस्तावना लिखी, और वो लिखता है कि एक सुपर कंप्यूटर बनाया गया. सुपर कंप्यूटर बनाकर ये कहा गया कि इससे कोई भी, कितना ही बड़ा साइंटिस्ट, कितना ही बड़ा कोई होटल मैनेजर हो, कितना ही बड़ा कोई मैनेजमेंट एक्सपर्ट हो, कुछ भी सवाल पूछे, आदमी इससे पहले आंसर दे, सुपर कंप्यूटर आंसर दे. और उन्होंने पूरे वर्ल्ड के बड़े से बड़े साइंटिस्ट बिठा के ऐसे ही हॉल में बिठाए, सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल कर दिया, और उन्होंने कहा कि आप सुपर कंप्यूटर से सवाल पूछो, जवाब देगा. अब जब मेरे को पता हो ना किसी ने जवाब देना, तो मैं सवाल ही पूछता हूं. सवाल भी तो तभी पूछे जाते हैं ना. बड़ा प्रोफेसर कैसे कहलाता है आदमी कि सवाल पूछा और कोई जवाब ना दे? ऐसा ही होता है कि नहीं होता? तो सारे बड़े साइंटिस्ट थे, सब एक दूसरे के मुंह की तरफ देखेंगे कौन सवाल पूछेगा, पर कोई ना पूछे, क्योंकि कोई सुपर कंप्यूटर से हारना नहीं चाहता. तो तब एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ वहां पे तुम्हारे जैसा. उसने कहा, छोटी है ना, छोटी है, 17, 18, 19 साल की होगी. उस छोटे से बच्चे ने हाथ खड़ा किया और उसने कहा कि सर, आई वांट टू आस्क ए क्वेश्चन. एवरीबॉडी वाज सरप्राइज्ड कि इतने सारे साइंटिस्ट और एक छोटा सा बच्चा सवाल पहला पूछा. उस बच्चे ने कंप्यूटर से सवाल पूछा, हाउ डज इट फील टू बी ए सुपर कंप्यूटर? हाउ डज इट फील्स टू बी ए सुपर कंप्यूटर? उसका सवाल था ये. अब कंप्यूटर की रेड लाइट भी ब्लिंक करे, येलो भी ब्लिंक करे, ग्रीन भी ब्लिंक करे, बार बार आती है ना. जब हम वेट वाली मशीन पे चढ़ जाते हैं तो पहले लाइट्स ब्लिंक करती हैं और फिर वो रुक जाती है. Ultimately lights continued to blink for quite some time, and ultimately the lights became stale and the supercomputer could not answer it. हमने सुपर कंप्यूटर तो बनाए, पर सुपर कंप्यूटर में क्या हम भावनाएं डाल सकते हैं? क्या हम इमोशंस डाल सकते हैं? हम रोबो पर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, पर रोबो हमारी सर्जरी भी करने लगे हैं, डॉक्टर्स के अल्टरनेटिव बनने लगे. बट क्या उस रोबो में कंपैशन या एम्पैथी या सिंपैथी हो सकती है? क्या नहीं हो सकती. और हम अपने आप को भी रोबोट बना रहे हैं आजकल. मैकेनाइज्ड लाइफ, सुबह 7 बजे घर से बाहर, रात को 9 बजे घर के अंदर. ऐसा ही है ना? ऐसा ही है कि नहीं है? सारे प्रोफेशनल्स की लाइफ ऐसी ही है. टाइम से टाइम नहीं है, बाकी सब कुछ है ना? तो इसलिए अपने आप को यदि तुम रोबोट बनाना चाहते हो, अपने अंदर की इमोशंस खत्म करना चाहते हो, तो फिर तुम्हारी लाइफ अलग है और फिर मेरा लेक्चर अलग है. डू यू वांट टू बी पर्सन विद कंपैशन? करना चाहते हो ना? इसलिए मैंने सामने लिखा, गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो. आंखों का डॉक्टर हूं ना, तो इसलिए आंसुओं की भी बात करता हूं. गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो. आंच तो तुम्हारे काम आती है ना, उबालते भी हो चीजें. गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की पीड़ा भी कम होगी जरूर, किसी के पांव का कांटा.
तो क्या इंपॉर्टेंट है, कांटा निकालना या कांटा छुड़ाना? The fourth thing which I want to do, बताओ बताओ जल्दी से, कौन सिखाएगा? सर वो खाएगा ही नहीं। अरे वाह, क्या बात है। व्हाट्स योर नेम? सुमित। सुमित, देखो चॉकलेट दे देना मैडम, मेरे पास है नहीं। क्यों नहीं खाएगा ये बताओ? सर वो कंफ्यूज हो रखा है, ग्रीन वाला खाएगा। वो जब सूखी की तरफ जाता है उसको ज्यादा तो दिखाई देती है, पर फिर उसको लगता है कि ये सूखी है, वो गर्दन फिर दूसरी तरफ ले जाता है, फिर वो देखता है कि ये है तो हरी पर थोड़ी है, वो इसी चक्कर में गर्दन घुमाता रह जाता है। इतने में भूख से इतना बेहोश हो जाता है कि बेहोश होके गिर जाता। और यही हमारे साथ होता है, हम सारी उम्र यही सोचते रहते हैं कि बनना ही क्या है। पर जो कुछ भी बनो, अच्छे इंसान बन के बनो, which is very important. Then desire and determination. उसी कोई भी काम करो, कभी उसको आधा अधूरा मत छोड़ो। सोचो, संकल्प लो और उसे कर दो। Have a desire in your mind and then be determined to achieve that desire, which is very important. And believe me, whatever the mind can of a man can conceive and believe, the man can achieve. पर हमारा डिजायर कैसा हो? It has to be a burning desire. जब तक आग अंदर ना लगे ना कि मैंने बहुत अच्छा होटल मैनेजर बनना है, ये आग होनी चाहिए हमारे अंदर। बड़े से बड़े जितने भी 20-30 लोग पूरे वर्ल्ड में हो होटल मैनेजमेंट में, उनके जैसा मेरे को बनना है। ये आग जब तक हमारे अंदर नहीं होगी, ऐसा डिजायर हमारे अंदर नहीं होगा, तो हम कुछ नहीं कर सकते। फरीद का नाम सुना तुम लोगों ने? फरीद का, फरीद जिनके नाम पे फरीदकोट है, बाबा फरीद, सूफी संत। उनके पास एक आदमी गया, वो कहने लगा महाराज मेरे को भक्ति सिखाओ, मेरे को आत्मज्ञान सिखाओ, ज्ञान दो किसी तरह का। तो फरीद ने कहा कि ऐसे करना, सुबह दोनों नहाने इकट्ठे चलेंगे नदी में। उन दिनों के स्विमिंग पूल थोड़ी होते थे या जहाज होते थे, नदी पे नहाने चलेंगे। वो नदी पे उसे ले गए, फरीद थे 6 फुट लंबे चौड़े, और वो आदमी आया, जैसे ही दोनों नहाने लगे, फरीद ने उसकी गर्दन पकड़ी और उसको पानी में दिया। वो आदमी अंदर से चिल्लाए,
कि मैं एक संत के पास आया था या डाकू के पास आया था, या एक ऐसे आदमी के पास आया था कि जो हत्यारा हो, वो उसको कहे तुम कर क्या रहे हो, मुझे बाहर निकालो बाहर निकालो, पर फरीद ने उसे दबाए रखा, और एंड में आफ्टर लॉट ऑफ स्ट्रगल दिस पर्सन कम्स आउट एंड टेल्स फरीद कि तुमने तो मुझे मार ही दिया। तो फरीद ने उसे एक सवाल किया। फरीद ने कहा कि जब तू पानी के अंदर था, जब मैं तेरी गर्दन पानी में दबाए था, तो तब तेरी क्या इच्छा थी? तो उस आदमी ने कहा उस टाइम मेरी एक इच्छा थी कि मैं कैसे सांस लेके जी जाऊं। तो फरीद ने कहा दिस इज द आंसर, कि तू जितना उस समय कोशिश कर रहा था, जितना उस समय तेरे अंदर डिजायर था टू सर्वाइव, यदि इतना ही डिजायर तू अपनी लाइफ में किसी भी चीज को पाने के लिए रखेगा, तो परमात्मा तो क्या तेरे को सब कुछ मिल जाएगा। So can we have that kind of a desire and determination? आवाज अंदर से आनी चाहिए, गर्दन हिलाने से नहीं, ये मोटो से आएगी। अमिताभ बच्चन कैसे अमिताभ बच्चन बना? वो कोई मोट की आवाज से नहीं बना, अंदर की आवाज से बना, अंदर से आई थी, लगा अंदर से आवाज। So that kind of a desire and determination, burning desire, we must have inside. विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए। जब हम सुबह घर से चलते हैं तो बहुत सारे दोस्त होते हैं कि छोड़ना यार, क्लास में क्या रखा है, कैंटीन में चलेंगे, पिक्चर में चलेंगे, है ना। सो विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है। और फिर डेडिकेशन कैसा हो, कैसा हो डेडिकेशन? यहाँ तो लिखा ही है, अपना भी बताओ कुछ भी, कैसा डेडिकेशन है? हमारा डेडिकेशन ऐसा होना चाहिए। वाचस्पति मिश्र का नाम सुना आपको? बहुत बड़े हिंदी के फिलोसफर और राइटर, ब्रह्मसूत्र पर भाषण। तुम पूछोगे ब्रह्मसूत्र क्या? चलो कोई रिलीजियस बुक है उसके ऊपर उसने बहुत अच्छा अपना टीका लिखी, अपने बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन लिखा, और लिखने में उसको कई साल लगे। और जब वो लिख रहे थे इन्हीं दौरान उनकी शादी भी हुई, और उसके बाद जो उनकी पत्नी थी उसका नाम था भामती। भामती, अब देखेंगे तेरा हस्बैंड तो लिखने में ही बिजी है, वो सुकरात की बीवी जैसी नहीं थी। वो रोज वाचस्पति की जगह साफ कर देती, टाइम पे खाना लगा जाती, जब कभी उनके दिया, क्योंकि उन दिनों में लाइट तो होती नहीं थी, दिया में तेल कम हो जाता तो तेल भर देती। ऐसा करके उस लेडी ने 14 साल उस आदमी के घर में निकाल दिया। और 14 साल के बाद जब एक दिन वो दिए में तेल डाल रही थी तो दिया गिर गया, गिरा, आवाज आई, वाचस्पति का ध्यान टूटा। तो वाचस्पति ने कहा कि तू देवी कौन है? बीवी थी उसकी, उसी से सवाल कर रहा है कि तू कौन है? तो उसकी वाइफ ने कहा कि मैं तुम्हारी ब्याही हुई पत्नी हूं। तो वाचस्पति ने कहा मेरा ब्याह कब हुआ? उसने कहा जब तुम ये पुस्तक लिखने में मगन थे तभी तुम्हारा परिणय सूत्र हो गया, तभी तुम्हारी शादी हो गई, और तुम क्योंकि इतने मगन थे, इतना तुम्हारे ध्यान में लगे हुए थे कि तुम्हें पता ही नहीं लगा। बट एट द सेम टाइम वाचस्पति वाज आल्सो इम्प्रेस्ड, उसको लगा कि इतनी डेडिकेटेड वाइफ कि जिसने 14 साल तक तुझे यही नहीं पता लगने दिया, तेरी सारी सुख सुविधाओं का इंतजाम रखा, तेरी हर छोटी छोटी चीज का ख्याल रखा, तेरे कपड़े टाइम पे धो के लगाए होंगे, तेरा आसन ठीक किया होगा, तेरी किताबें ठीक की होंगी, तेरे दिए जलाए होंगे, सब कुछ किया होगा। तो तब he was so impressed by the dedication of भामती कि उसने अपने जो ग्रंथ जिसकी वो रचना कर रहे थे उसका नाम भी भामती। That is what you can achieve with your dedication.
और ये डेडिकेशन ही है कि जो हरिवंश राय बच्चन को प्रेरित करती है कविता लिखने के लिए कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस करता है, गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना न करता है। मेहनत उसकी कभी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की। लहरों से डरकर नौका, कोशिश करने वालों की। डुबकियां सिंधु की गोताखोर लगाता है। जो डाइवर है ना, तो बार बार जाता है। डुबकियां सिंधु की गोताखोर लगाता है, बार बार खाली हाथ लौट आता है। जितना खाली हाथ लौट आता है तो उसे ये पता लगता है कि मिलते ना मोती सहज पानी में, पर दूना बढ़ता उत्साह इसी हैरानी कि मोती पानी में आसानी से मिलते नहीं है, इसी हैरानी में उसका दूना उत्साह होता है। पर मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की। कितनी कितनी हाथ लगा के होता है, कितनी कितनी इतनी 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 उतना डिजायर रखेंगे जितना फरीद ने उसको समझाया। जितना मरने के समय आदमी छटपटाता है और अपने लिए संघर्ष करता है कि एक भी सांस आए, ऐसा संघर्ष हम हमेशा अपनी लाइफ में रखेंगे, ऐसी डेडिकेशन हम हमेशा अपनी लाइफ में रखेंगे। दिस इज व्हाट मैं तुम्हारे लोगों से प्रॉमिस लेना चाहता हूँ। करते हो कि नहीं प्रॉमिस? जो करते हैं हाथ उठाए। लड़कियां वैसे बहुत इंटेलिजेंट है। The more I speak to the ladies, the more I love my speech, because मेरे को लगता है कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियां कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छी बातें सुनना पसंद करती हैं। होता है कि नहीं होता ऐसा? Then spirit of inquiry. I'll be leaving few things because time doesn't permit me to go on and on with my presentation. But this is very important. The spirit of inquiry is very important. हम अपनी लाइफ में कोई भी काम करें, हमारे अंदर जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए कि ये ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। मेरे एक टीचर थे, वो मुझे कहा करते थे अगर तुम्हें साइंस का स्टूडेंट बनना है ना तो 7 अंकल बना ले। मैंने कहा मेरा तो एक भी नहीं है, 7 कहाँ से बना। My father was alone. He said what, where, when, how, who, whom, whose. They are 7 uncles, and if you can weigh everything on the altar of the 7 uncles. अगर इन 7 अंकल्स की आल्टर पे तुम किसी भी चीज को कसौटी पे तोल सकते हो इन 7 अंकल्स की, तो तुम्हारी जिज्ञासा शांत हो, तब तुम्हारी जिज्ञासा पूरी होती है जिस दिन तुम हर चीज को इन 7 अंकल्स पे तोलो। इसलिए स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू सी, Socrates, he was to be poisoned, he was ordered to be poisoned, and जैसे कल उसको पॉइजन दिया जाना है तो उससे उसको उसी जेल में किसी के बड़े सुंदर म्यूजिक की आवाज सुनाई, तो वो उसके पास गया और उसे कहा कि क्या तुम मुझे म्यूजिक सिखा सकते हो इतना सुंदर। उन्होंने कहा पागल हो गया, कल फांसी हो जानी है, आज म्यूजिक सीख के क्या करेगा। तो सोक्रेटिस ने कहा कि भगवान ने जो जीवन दिया उसका एक एक क्षण का हिसाब मैं भगवान को देना चाहता हूँ कि मैंने कुछ ना कुछ नया सीखने में, कुछ ना कुछ नया करने में, कुछ ना कुछ नया जानने में लगाया। इसलिए मैं आज भी मरते दम तक भी उसने अपनी एफर्ट्स नहीं छोड़ी। He wanted to learn a new thing. और सोक्रेटिस ही था जिसने ये कहा कि इट इज नॉट इम्पोर्टेंट हाउ मच यू नो, इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू शुड नो हाउ मच यू डू नॉट। क्या इंपॉर्टेंट है कि मुझे कितना नहीं आता, कितना आता इज नॉट इम्पोर्टेंट, मेरे को कितना आता है इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, कितना नहीं आता दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और जब सोक्रेटिस के वहाँ ग्रीस के लोग अपने वहाँ की देवी जो नॉलेज की देवी थी डेल्फी, उसके पास गए और उनसे कहा कि तुम हमें सबसे इंटेलिजेंट पढ़े लिखे नॉलेजेबल आदमी का नाम बताओ, तो डेल्फी ने कहा कि सोक्रेटिस।
लोग सोक्रेटिस के घर में भीड़ होगी, ये सबसे ज्ञानवान आदमी ये है। तो सोक्रेटिस ने कहा कि डेल्फी को गलती लगी होगी, मुझे तो कुछ आता ही नहीं। तो लोग वापस डेल्फी के पास गए और डेल्फी से फिर कहा कि सोक्रेटिस तो कहता है कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं। तो डेल्फी ने कहा यही तो उसका ज्ञान है, यही तो उसका ज्ञान है, अपनी अज्ञानता को जानना, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। इसलिए अपना स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी हमेशा बरकरार रखना। और सबसे बड़ी बात, जीवन में कोई भी काम करो पूरे फोकस के साथ। स्वामी विवेकानंद, जिनको मैडम अभी वाइस चांसलर कोट कर रही थी, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि तुम सब अमृत के पुत्र हो, तुम सब के अंदर मानव से महामानव बनने की क्षमता है। Each one of you can be an Einstein, each one of you can be an Edison, each one of you can be whatever you think of or whatever you dream of. तुम्हारे सब के अंदर क्षमता है, तुम्हारे सब के अंदर पोटेंशियल है। Only thing is that you need to know that potential. तुम्हें अपनी उन सुप्त शक्तियों के बारे में पता होना चाहिए। और शिक्षा का उद्देश्य, स्वामी विवेकानंद ने तब कहा कि केवल और केवल तुम्हारी सुप्त शक्तियों को जागृत करना, और वो सुप्त शक्तियां केवल और केवल ध्यान से जागृत हो, फोकस से जागृत। स्वामी विवेकानंद ने किसी ने पूछा कि यदि तुम्हें दोबारा जीवन मिले, क्योंकि वैसे ग्रेजुएट बीए किया था उन्होंने, तो तुम कौन सी शिक्षा लेनी चाहोगे? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं कोई बीए, एमए, बीएससी, एमएससी की डिग्री नहीं लेना चाहता, मैं केवल और केवल ध्यान की शिक्षा लेना चाहता हूँ, क्योंकि यदि तुम्हारे अंदर ध्यान है तो तुम सब कुछ पा सकते हो। यू सी, हैव यू सीन सर्कस? कितने लोगों ने देखा? कौन सी सर्कस देखी? नाम? जैमिनी, चलो छोटे बचपन में देखे ना सर्कस। अब तुम सर्कस में देखो, एक जो होता है ना सीन, या तो वो पहला होगा या आखिरी होगा, शेरों वाला, है ना? या वो जिम्नास्ट वाला एक का आखिरी होगा, अगली सर्कस का पहला होगा, क्योंकि इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू मेक द एस्टैब्लिशमेंट फॉर दोस टू सीन्स। अब तुम जब शेरों का देखो पिंजरा, उसमें तुम एक चीज कभी तुमने नोट की है कि रिंग मास्टर को देख और शेर 20, कैसे एक रिंग मास्टर 20-20 शेरों को संभालता है, तो एक एक शेर जंगल का राजा, जिससे पूरा जंगल डरता है। कैसे? क्या फोकस? तुम एक चीज ध्यान देना, जब दोबारा सर्कस एक बार मेरे कहने पे देखने जाना, ठीक है ना? या टीवी पे देख लेना, यूट्यूब पे भी बड़ी सारी सर्कस आ रही है। तुम देखना कि जो रिंग मास्टर है वो एक तो कोड़ा रखता है, हंटर, और एक हाथ में वो वहीं से एक स्टूल उठा देता है। जब भी कोई शेर उसकी तरफ गुर्राता है या उसकी तरफ अटैक करने की कोशिश करता है, तो वो जो ये 4 प्रॉन्ग 4 टांगों वाला जो स्टूल है वो उसके मुंह की तरफ, जैसे ही वो 4 टांगों वाला स्टूल शेर के मुंह की तरफ करता है, तो शेर को ये नहीं पता लगता कि कहां से अटैक होगा, इस टांग से होगा, इस टांग से होगा, इस टांग से होगा या इस टांग से होगा। उसका जो फोकस है वो टूटता है, और जैसे ही फोकस टूटता है तो इतना स्ट्रॉन्ग एक एनिमल, जंगल का राजा, बिल्कुल ऐसे में आ जाता है जैसे उसका कुत्ता हो जाता है कि नहीं हो जाता, और पूंछ लाने लगता है। Why? Because the hunter, the person works on the psychology of the lion. He knows that the strength in the lion is because of his focus, and if I am able to break the focus, I will be able to tame the lion. So it is very simple once you know the psychology. So that is what focus can do to you. That you are focusing all your energies onto that one particular action. So इस तरह का focus यदि हम अपनी लाइफ में बनाएंगे, तो believe me, success तो कोई चीज़ ही नहीं है। कोई भी काम करो, give your 100% focus. पढ़ाई के टाइम नो मोबाइल, पढ़ाई के टाइम सिर्फ पढ़ाई, खेलने के टाइम सिर्फ खेलना, पिक्चर के टाइम केवल पिक्चर। और हमारे साथ होता है, पिक्चर में भी 10 बार मोबाइल सुनने जाते,
जो काम करना उसको पूरे 100% अपने फोकस के साथ करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड गोल सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। द गोल नीड्स टू बी स्पेसिफिक, द गोल नीड्स टू बी मेजरेबल, द गोल नीड्स टू बी अटेनेबल, द गोल नीड्स टू बी रेलेवेंट, एंड द गोल नीड्स टू बी टाइम बाउंड। स्मार्ट, दैट शुड बी योर गोल्स। छोटे छोटे गोल अपने लिए रोज सेट करना, एंड थोड़े सालों के बाद तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा लाइफ जो है बिल्कुल चेंज होगी। कभी भी बड़े गोल्स के ऊपर अचीव मत करो, कभी भी फोकस मत करो। ऑलवेज डे टू डे गोल्स, देन वीकली गोल्स, देन मंथली गोल्स, देन एनुअल गोल्स, एंड देन द गोल्स फॉर योर लाइफ। और ऐसे धीरे धीरे करते करते हम अपने गोल्स अचीव कर लेते हैं। बट व्हाइल अचीविंग द गोल्स यू मस्ट डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिविटी एंड अकम्प्लिशमेंट। कई लोग हिलते बहुत हैं, काम बहुत करते हैं, पर लाइफ में उन्हें मिलता कुछ नहीं। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो पर्पसलेस घूमते हैं। और हमारे तो एजुकेशन ही ऐसी है। बच्चा पैदा हुआ, सबसे पहले स्कूल में किस चीज में बिठाते हैं? रॉकिंग हॉर्स। गया बच्चा, रोया बच्चा, मैडम ने रॉकिंग हॉर्स में बिठा दिया, बच्चा हिलता रहे बेटे, तो जा नहीं सकता नहीं। There is lot of activity in that, but there is no accomplishment. And if you look at the caterpillar, it will roam around, go round and round, but it will not achieve anything. मैं पहले कुछ साल पहले ना, अभी तो मैंने घर बना लिया अपना, कैंपस में ही रहता था। जब मैं कैंपस से बाहर निकलता तो मेरी गाड़ी के पीछे कुत्ता भागता था रोज। उसकी आदत थी, आई एम टेलिंग यू ट्रूथफुल स्टोरी। अब वो जब मेरी गाड़ी के साथ साथ भागता तो मुझे लगता है यार अस्तलपुर के आदमी तो तेरे को गाली देते ही होंगे, कुत्ते भी तेरे को गाली देते। मैं बड़ा हैरान होता ये क्यों भागता। और एक दिन मेरे बेटे ने मेरे से सवाल पूछा कि पापा ये किसी दिन हमारी कार को पकड़ भी पाएगा या नहीं पाएगा? तो माय आंसर वाज, इवन इफ he catches on my car, what is he going to achieve? Nothing. So whatever he was running around making effort but gaining nothing. So our activity has not to be like this, that we do lot of activity but accomplish nothing. So we have to differentiate between activity versus accomplishment while we achieve our goals, which is very important. And gratitude. जब भी कुछ भी पढ़ो करो, सब परमात्मा को, अपने माँ बाप को, अपने गुरु को अर्पित कर दो। और बुल्ले शाह ने बड़े अच्छे शब्द लिखे। बुल्ले शाह ने लिखा, क्यों पढ़ना है गंढ किताबें भी, क्यों इतनी भारी भारी किताबें उठा के बस्ते देखे आजकल बच्चों को बैक एक भी होने लगे, स्पाइन मुड़ गया बेचारे बच्चों का बस्ते उठाते उठाते। ऐसी हमारी एजुकेशन है कि नहीं है? तुम तो खड़ी हो, तुम्हारा पता नहीं बस्ता कैसे हल्का था, परंतु बाकी ऐसे ऐसे करके सब लोगों के आजकल जो नई जनरेशन है, बिकॉज 30 किलो का बस्ता है, 10 किलो का बच्चा है ना। तो उसने लिखा क्यों पढ़ना है गंढ किताबा दी, क्यों चाहना है पंड अजाबा दी, कि तू अपने सिर पे पता नहीं क्या क्या बोझ उठाए हुए, किसी से लड़ाई, किसी से झगड़ा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, पता नहीं क्या क्या तुम लेके उसने कहा क्यों चाहना है पंड अजाबा दी, हो ही शक्ल जलादा दी। तेरी शक्ल भी जो है ना जलादा जैसी, अगे पेंडा मुश्किल भरा। अगर तू ऐसा करता रहेगा तो तेरे को बहुत मुश्किल पड़ने वाली है जिंदगी में। एक अलग पड़ो छुटकारा है कि एक भगवान का नाम ले, सब चीज़ों से जुड़ जाएगा। तो इसलिए आलतू फालतू की चीज़ें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो तुम्हारे काम की चीज़ें हों उन पर ध्यान दो, जिनसे तुम्हारी लाइफ बने उन पर ध्यान। ऑनेस्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑनेस्टी के बारे में मैं तुम्हें ज़्यादा लेक्चर नहीं देना चाहता, बिकॉज मेरे को लगता है कि जो बच्चे क्लास में बैठते हैं वो ऑनेस्टी होती है। जो बाहर है उनको लेक्चर दूंगा, जो इस क्लास में दोज वर सपोज टू कम और नहीं आए, ऑनेस्टी का लेक्चर मेरे को उन्हें देना चाहिए नहीं। देन ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपनी लाइफ में कुछ भी बनो, विनम्र बनो। और तुम्हारे तो ये प्रोफेशन का सबसे बड़े स्ट्रेंथ है, ह्यूमिलिटी इज योर स्ट्रेंथ। जितने हम्बल आप होगे उतना अपने प्रोफेशन में सक्सीड करोगे। और इसीलिए हमने लिखा, शुरू में हमारे पुराणों ने लिखा कि विद्या क्या है? विद्या ददाति विनयम। विद्या वह जो हमें हम्बल बनाए, और विनयम ददाति पात्रता। और विनय, विनय किसके अंदर आता है? जो सुपात्र है, जो अच्छा व्यक्ति है। और जब पात्र जब बनता है व्यक्ति, सुपात्र बनता है, तब उसको धन मिलता है, धनम आपनों की, तब उसे धन मिलता है। और धनात उस धर्म से, उस धन से
जो धर्म आदमी करता है वो सुख देता है। इसलिए विद्या वह है जो हमें हम्बल बनाए। और आजकल क्या है कि लोग पीएचडी करेंगे ना तो पता क्या लिखते हैं आजकल, बीए, एमए, पीएचडी। अरे एमए किया होगा तो पीएचडी करें। एमए किया है, बीए की होगी तो एमए की, परंतु लोगों को लंबी करनी है अपनी डिग्री, क्योंकि डिग्री में ही वो है। और डिग्री वह जो हमें हम्बल बनाए, ऐसा नहीं लंबे लंबे प्रोफेसर के नाम लिख के। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि हमें अपनी लाइफ में कुछ भी बने, we must continue to remain humble because humility is our strength। और भगवान कृष्ण ने भी जब युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ हो रहा था तो भगवान कृष्ण ने भी क्या काम ढूंढा था, जूठी पत्थर उठाने का काम। अभी आप देखो, आप गुरुद्वारे में जाओ, आप अपने जूते दे दो, पॉलिश होकर बाहर मिलेंगे। जूते साफ करने की लोगों की लाइन है, बर्तन साफ करने की लोगों की लाइन है। क्यों? क्योंकि वो बर्तन साफ करने से अपने अंदर ह्यूमिलिटी पैदा करना चाहते हैं। जूते साफ करने से दूसरे के अपने अंदर की ह्यूमिलिटी पैदा करना चाहते हैं। इसलिए विद्या वह जो हमें विनम्र बनाए। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम तो तुमने सुना होगा ना। बहुत बड़े टीचर थे और बहुत सिंपल टीचर थे, बहुत हम्बल टीचर थे। एक दिन किसी स्टूडेंट ने उनसे मिलने आना था और वो बाई चांस स्टेशन पर घूम रहे थे और वो स्टूडेंट कुली कुली चिल्ला रहा था। विद्यासागर ने उसका टैक्सी उठाया और उस पूछा कहाँ जाना है, उसने कहा विद्यासागर के घर जाना है, और वो अपने घर पे ले आए। और उसके बाद अंदर आए, कपड़े बदल के जब बाहर निकले तो उसने कहा मैं तो डॉक्टर विद्यासागर के घर आया था। तो उसने कहा नहीं, डॉक्टर विद्यासागर। तो वो बड़ा शर्मिंदा हुआ कि डॉक्टर विद्यासागर ने आज तेरा सम्मान किया। इनिशिएटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट एवर देखो, लाइफ में वही लोग सक्सेसफुल होते हैं जो इनिशिएटिव लेते हैं। जितने भी तुम्हारे होटल्स के कंसेप्ट है ना, चाहे वो हॉलीडे इन का कंसेप्ट है, चाहे वो किसी और चीज़ का कंसेप्ट है, ये सब कंसेप्ट किसी ना किसी के इनिशिएटिव से बने। किसी ना किसी ने रियलाइज़ किया कि लोगों की ज़रूरतें क्या हैं और उन ज़रूरतों पे काम करके वैसी इंडस्ट्री पैदा की। इसलिए इनिशिएटिव लेना बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन जिंगोइस्ट मीन्स ओवरली नेशनलिस्ट। हम कुछ भी करें अपने देश को सबसे पहले, think not what you are doing for your country, and also think not what country is trying to do. It is very important to think that what you are contributing for it. So it is very important to be over nationalistic. Swami Vivekananda, as madam was quoting here, Swami Vivekananda was one such saint जिसने भारत की उस समय झंडे को ऊंचा उठाया जब भारत का 1857 का स्वतंत्रता का संग्राम सब कुछ पिट चुका था। हिंदुस्तान वाले मान चुके थे कि हमें गुलाम रहना है। उस समय विवेकानंद ने शिकागो में जाकर लोगों को हिंदुस्तान के बारे में बताया और वहाँ पर हिंदुस्तान के झंडे को बुलंद किया। उस स्वामी विवेकानंद को ही वॉज ए वंडरफुल स्पीकर। और जब जहाँ जाता था लोग बहुत सारे उनको गिफ्ट्स देते थे। एक किसी आदमी ने उन्हें सूट पैंट भी दे दिया। तो विवेकानंद को ये भी रिक्वेस्ट की कि आप एक दिन डाल कर आए। विवेकानंद ने उस दिन फिर उसके कहने पर जूते भी डाले, पैंट भी डाली, सूट ऊपर का कोट भी डाला, टाई भी लगाई। बट द पर्सन वाज सरप्राइज्ड कि जब विवेकानंद बाहर निकले तो हैट नहीं डाला। हैट की जगह अपना साफा लगाकर बाहर आ गए। तो उसने कहा स्वामी जी आप सिर पर साफा भी लगा लेते, तो सिर पर हैट भी लगा लेते। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मस्तक पर तो मेरा भारत रहेगा, विचारों में तो मेरा भारत रहेगा। तो फिर किसी लेडी ने ये भी कह दिया कि इतने ही नेशनलिस्टिक हो तो ये चमड़े के जूते क्यों डाले ये अमेरिका के। तो तब 1992 में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जिसकी जो जगह नहीं पकड़नी। आजकल मेरा कुछ हो ना हो, मेरे पड़ोसी का नहीं हो, मैं पास हूं ना हो, ये साथ वाली फेयर होनी चाहिए। ऐसे ही है ना। ये जो जेलसी है ये हमें अंदर तक खत्म करती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कभी भी जेलसी मत रखें। अपना काम अच्छा करते रहे, दूसरे के लिए कोई जेलसी हम ना रखें।
अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा कि अकबर, तेरी हथेलियों पे बाल क्यों नहीं? बीरबल तो बीरबल, उसने कहा महाराज आप सारा दिन तो मेरे को देते रहते हो, सारा दिन तो कुछ ना कुछ मेरे को देते रहते हो, तो मेरी हथेली पे बाल उगेंगे कैसे? तो अकबर भी अकबर था, उसने कहा चल तेरी की तो ठीक है, मेरी पे क्यों नहीं? उसने कहा महाराज ये भी कोई बात हुई, मैं लेता रहता हूँ, तो इसलिए ना आप भी होंगे ना मेरे होंगे। तो अकबर ने कहा पर ये सारे दरबारी बैठे, इनके भी क्यों नहीं है? तेरी मेरी तो ठीक है, मैं देता रहता हूँ इसलिए नहीं है, तू लेता रहता है इसलिए नहीं है, पर इनका क्या है ये जो सारे दरबारी बैठे? तो बीरबल ने कहा महाराज आप देते हो, मैं लेता हूँ, और ये ईर्ष्या से हाथ हमसे, इसलिए you see we have lot of information with us nowadays. The information is available at the click of the button. किसी की बस तो नहीं जानी ना? जानी है? फिर मैं खत्म करता हूँ बस। क्या टाइम हो गया? I just finished in 5 minutes. तो हमारी नॉलेज कैसी है? हमने इंफॉर्मेशन तो बहुत की, और इंफॉर्मेशन आजकल नेट ने भी हमें बहुत दी, बट इंफॉर्मेशन जो हमारी ये है ना, इफ इट इज नॉट कंबाइंड विद वैल्यूज, इट ओनली रिमेन्स इंफॉर्मेशन, इट डजंट बिकम नॉलेज एंड विजडम. लॉरेंस वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर द फ्रेंच पीपल कुड एवर हैड, एंड ही वर्कड इन इंडिया फॉर क्वाइट सम टाइम. और एक दिन उसके मन में आया कि क्यों ना मैं राजस्थान के लोगों को पेरिस घुमा के लाऊं. फिलोसोफर है, कुछ भी सोच सकता है. हमारी इंडस्ट्री का मामला है, इसलिए सुनना ध्यान से. राजस्थान के आदमी को पेरिस घुमाने ले गया, और जाकर उन्हें बता दिया कि शाम को एफिल टावर देखने चलेंगे, थोड़ी देर आराम करो, शाम को सुबह बस तुम्हें लॉबी में मिलेगी, उसके बाद सब चलेंगे एफिल टावर देखने. अब लॉरेंस ने 5 बजे का टाइम दिया, 6 बजे तक कोई नहीं आया, 7 बजे तक कोई नहीं आया, 8 बजे तक कोई नहीं आया, 9 बजे तक कोई नहीं आया. एफिल टावर की टिकट बंद होने का टाइम है. ये ट्रुथफुल स्टोरीज है. तो 9 बजे लॉरेंस ऊपर गया देखने के भी आखिरकार ये लोग नीचे आ क्यों नहीं रहे, देख के आऊं. वो ऊपर देखने गया तो उसने देखा सब बाथरूम में नहा रहे हैं. राजस्थान का आदमी पीने को पानी नहीं, यहाँ नहाने को मिल रहा है, तो नहाएगा ही ना. नहाता रहो, नहाते रहे. उसने कहा चलो आज तो टाइम गया, कल सुबह टाइम से तैयार हो गया. अगले दिन भी कोई नहीं आया, उससे अगले दिन भी कोई नहीं आया. 14 दिन का स्टे था, पूरा बीत गया, सिर्फ वो लोग नहाते थे. और 14वें दिन के एंड में उसने कहा कि देखो आज हमारी फ्लाइट वापसी की है, आज तुम टाइम पे आ जाना, नहीं आए तो फ्लाइट निकल गई तो फिर कोई चारा नहीं. फिर भी दिन गए और टाइम पे नहीं. अब तो उसको भागना था, वो वेट नहीं कर सकता था, वो ऊपर गया था. तो उसने देखा कि सारे आदमी अपने बाथरूम के जो टैप्स है ना उनको खोल रहे हैं, उतार रहे हैं. तो उसने कहा भी ये क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग दिस. हिंदुस्तान की मेंटालिटी है चोरी करने की, हमारे प्लेयर्स भी जाते हैं जुराब बना लेते हैं. तो वो टैप्स खोल रहे थे. तो उसने कहा भी इन टैप्स का तुम करोगे क्या. कहता अपने गांव में जाके भी तो नहाएंगे. अब उन बेचारों को ये कौन बताए कि पानी का सोर्स कहीं और है, टूटी इज ओनली ए रेगुलेटर. तो जो तुम इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हो किताबों में या नेट पे, इट इज ओनली एन इंफॉर्मेशन. नॉलेज इज समवेयर एल्स, विजडम इज समवेयर एल्स. So you must differentiate between information and knowledge, which is very important. And leaving everything, in the end, I will come to that whatever we earn in life, we must yield it. और जिंदगी में कभी भी किसी का साथ मांगे तो किसी दूसरे का मत मांगे. कोई बच्चा जब हम मरेंगे हमारे साथ नहीं जाएगा, कोई पत्नी हमारे साथ नहीं जाएगी जब मरेंगे, आए भी अकेले जाएंगे भी अकेले. ये बात तय है ना. इसलिए जब भी कभी साथ मांगना तो परमात्मा का मांगना. उमर ख़याम एक बहुत बड़े सूफी संत हुए, एक दिन कहीं जा रहे थे, रास्ते में जंगल पड़ा,
नमाज का समय हुआ, उनके लिए जंगल मस्जिद में कोई फ़र्क नहीं, उन्होंने जंगल में नमाज अदा करनी शुरू करी। उनके साथ एक उनका चेला था, शिष्य था, स्टूडेंट था, और इतने में एक शेर आ गया। जैसे ही स्टूडेंट ने देखा, वो स्टूडेंट तो चढ़ गया पेड़। ऐसे ही स्टूडेंट है आजकल, टीचर का कोई साथ नहीं देता। ये तो तब भी ऐसे ही थे, आज भी क्या है, तब भी ऐसे ही थे। वो पेड़ पे चढ़ गया, और जैसे ही वो पेड़ पे चढ़ा, और उमर क़याम अपनी नमाज में बिल्कुल मशगूल रहे। उन्होंने कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई, उनको बड़े आराम से अपनी नमाज पढ़ते रहे। शेर ने भी देखा, शेर बैठा, झुका और वापस चला गया। उसके बाद नमाज समाप्त हुई, चेला नीचे उतर आया शेर के जाते ही, दोनों फिर चलने लगे। थोड़ी देर आगे गए तो उमर क़याम ने जोर से अपनी गाल पे पकड़ा। उस शिष्य ने पूछा, क्या हुआ गुरुदेव? तो उसने कहा उमर क़याम ने कि कुछ नहीं यार, एक मच्छर था। शिष्य बड़ा विचलित हुआ। उसने कहा कि ये आदमी बड़े आराम से बैठा था, और एक मच्छर आया, इतना विचलित हुआ कि इतनी जोर से अपना कान में काटा मारा। उसने कहा गुरुदेव, ये समझ में नहीं आई बात। तो उमर क़याम ने कहा, मैं समझाता हूँ, सुन। जिस समय शेर आया, उस समय में परमात्मा के साथ, और जिस टाइम मच्छर आया, उस टाइम में तो किसका साथ मानना चाहिए? परमात्मा का। समुराई जानते हो समुराई क्या होता है? क्या होता है? या देखो, वर्ड की नॉलेज तुम्हें आनी चाहिए अगर तुम्हें होटल इंडस्ट्री में जाना है। समुराईज आर द फाइटर्स इन जापान। एक समुराई की शादी हुई, अपनी बीवी को घुमाने के लिए क्रूज पे ले गया, बोट पे। बीच समुद्र में तूफान आया, सब लोग भागने लगे इधर उधर बचने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए हर कोई भागता है, पर ये समुराई बड़े आराम से बैठा। उसकी बीवी ने सोचा, इतने बड़े योद्धा से तेरी शादी हुई है, फाइटर से, और देख सब लड़ रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, और ये आदमी आराम से बैठा। उसने कहा, सारी दुनिया भाग रही है, तुम कैसे योद्धा हो, कैसे वीर हो, क्यों नहीं भागते मेरी जान बचाने के लिए? तो समुराई के हाथ में क्या था? तलवार। तलवार निकाली और दे बीवी की गर्दन पर। जैसे ही उसने बीवी की गर्दन पर तलवार रखी, बीवी हंसने लगी। तो समुराई ने कहा, हंसी क्यों? उसने कहा, मूर्ख, जब तलवार तेरे हाथ में है तो मैंने क्या डरना? पति के हाथ में तलवार हो, कोई पत्नी डरती है क्या? कोई डरती है क्या? नहीं डरती ना। तो समुराई ने कहा, बस इतनी सी बात समझ लो, जब तलवार परमात्मा के हाथ में है तो मुझे भी डर। इसलिए डूबने का डर मुझे हो तो क्यों, डूबने का डर मुझे हो तो क्यों हो, मैं तेरा, सागर तेरा, साहिल भी तेरा। अगर फितरत है आंधी को जलते दिए बुझाने की, तो जिद अपनी भी है, खूने दिल से फिर से उन्हें जलाने की। गिराकर बर्फ मेरा घर, आसमां चाहे मिटा दे। गिराकर बर्फ मेरा घर, आसमां चाहे मिटा दे। जगह हम ढूंढ ही लेंगे, ज़मीन पर सर छिपाने की। These words, thank you very much. And thank you, Dr. Shweta, for giving me an opportunity to talk to these lovely students. And I wish them all the success in their career. And even if one word of my presentation would be useful to your life, I'll feel that my purpose is achieved. Thank you very much.